दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे गेट 2016 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरली हर पेपर में 5-6 क्वेश्चंस है, बट इस पेपर में टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका वेटेज 5 मार्क्स का है। एक बार मैं वॉइस चेक कर लूँ अपने एंड से, देन आई एम स्टार्टिंग द सेशन। पाँच मार्क्स का है या वॉइस इज फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को डिस्कस करना। 3 क्वेश्चन पूछे गए जो कि ऑन एन एवरेज लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। अगर आपके बेसिक्स ठीक ठाक है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। प्रॉब्लम नंबर 1, दिस इज अ 1 मार्क प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम सेज लेट Zn be a sequence of distinct points in D, where D is a open unit disk with limit n tends to infinity, Zn is 0। यानी कि जो Zn है वो एक ऐसी सीक्वेंस है जो 0 पे जा रही है और 0 आपका ऑलरेडी D के अंदर है। यू कैन फील this 0 is a member of D. Consider the following statements P and Q. P statement: there exists a unique analytic function f on D 0,1 such that f of Zn matches with sin Zn. तो इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट सपोज मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। डिफाइन h फंक्शन जो कि है D से लेकर के C पर h of z is sin z. This sin z is analytic, है ना? The sin z is analytic. Let f be a function. Let f is a function from D to C is analytic, and f of Zn takes value. तो मुझे f का जो f के जो पॉइंट्स की इमेजेस है, मतलब f जो डिफाइन है उसमें मुझे सिर्फ Zn पर एक्शन पता है, बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स पे आई डोंट नो द एक्शन ऑफ f. So you can feel h minus f is an analytic function. If I evaluate h minus f at point Zn, I am expected to get sin Zn minus sin Zn, क्योंकि at Zn your f takes sin Zn, and h is a sin z function, so at point Zn h will take value sin Zn. So sin Zn minus sin Zn will be 0. Now this Zn is a sequence in the D. This Zn converges to 0. 0 is also available in the D. यानी कि इस h minus f जो कि एक एनालिटिक फंक्शन है, इसके पास एक सीक्वेंस ऑफ जीरोस है जिसके पास लिमिट पॉइंट है और लिमिट पॉइंट भी डोमेन D के अंदर है। Then by identity theorem this function must be constant. But h minus f at point Zn takes 0, तो constant भी कौन सा possible होगा? 0 constant. So this will force h minus f will be identically 0 function. Hence h will be identically same as f. यानी कि अगर आप कोई फंक्शन f लोगे तो that will be same as h function. So sin z is the unique analytic function with the given property. So this P is a true statement. Second, there exists an analytic function f on the open unit disk D such that f of Zn is 0 if n is even and f of Zn is 1 if n is odd. तो क्या कोई ऐसा फंक्शन मिल सकता है? अगर मैं सेम प्रॉपर्टी यूज करूं इसके लिए बी स्टेटमेंट, अब क्यू स्टेटमेंट के लिए, तो मैं दो फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं। लेट सपोज g1 इज अ फंक्शन और g1 कॉमा g2 डिफाइन करते हैं। These are two functions from D to C. g1 of z is 0 for every z. g1 of z is 1, g2 is 1 for all z. Now you can feel अगर आप जो B statement, Q statement given है, now f is a function from D to C that is giving you Zn is 1 and 0.
1 कब हो रहा है? when n is odd. It takes value 0 when n is even. Then you can realize g1 and g2 both are analytic, being constant functions. If you think about g minus f, if you think about g minus f at point z2n, so it will be g1 of z2n minus f of z2n. Now g1 is identically 0. F of z2n, because when n is even, it is taking value 0. तो यानी कि g1 minus f being analytic function, it is a sequence of zeros that converges to 0, and 0 is a member of the open unit disk. This implies by identity theorem g1 minus f must be constant, but what will be the constant? Because it is taking value 0 at point z2, and so the constant must be 0. Hence g1 is identically same as f. Just a second. No? तो यहाँ से आपका g1 जो होगा वो कांस्टेंट f हो जाएगा, जो g1 हो जाएगा और f हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे. अगर f और g1 दोनों सेम हो गए, g1 कितना 0, तो दिस f इज आइडेंटिकली 0. अगर f आइडेंटिकली 0 हो गया तो क्या वैल्यू 1 ले सकता है? तो दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. दिस मीन्स आपके पास ऐसा फंक्शन f पॉसिबल नहीं, क्योंकि g1 g2 तो पॉसिबल है ही है. सो f is not possible. So this is a false statement. I hope both the statements are clear. So correct option will be only B. Correct option will be only B. Next problem. Let gamma is a circle of radius 2 centered at origin in the counterclockwise, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डिफाइन किया हुआ एक सर्कल है. Let I बराबर 1/2 pi I integral along the closed contour gamma z to the power 7 cos 1 by z square dz. तो क्लियरली दिस फंक्शन हैज प्रॉब्लम ओनली एट 0, कहीं और उसको प्रॉब्लम नहीं है. सो बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, by Cauchy residue theorem, this integral I will be same as residue at point residue of function f at point 0. 0 क्यों? क्योंकि इस पूरे फंक्शन को सिर्फ 0 पर प्रॉब्लम है. इसके अलावा आप देखो z की पावर 7 एक पोलिनोमियल है, हमेशा एंटायर है. cos 1 upon z स्क्वायर, इसको सिर्फ और सिर्फ z बराबर 0 पर प्रॉब्लम है, और z बराबर 0 आपके सर्कल के अंदर भी आएगा. इफ यू ड्रॉ द सर्कल, इट इज इनसाइड. सर्कल रेडियस 2 का है, तो ओरिजिन विल बी इनसाइड. तो यहाँ से रेसिड्यू निकालना है, तो रेसिड्यू क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ 1 by z in the Lorentz series of z to the power 7 cos 1 by z to the 7, 1 by z square
around 0. This is how we characterize the residue. तो यहाँ से अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे z की पावर 7 cos 1 by z square, it will be z to the power 7 1 minus 1 by z square का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 by z square की पावर 4 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. इसको मैं यहाँ निकालता हूँ, इधर एक्सपेंड कर देते हैं. तो यहाँ से अगर आपको कोफिशिएंट निकालना होगा ऑफ 1 by z, सो दैट कोफिशिएंट विल बी z की पावर 7 यहाँ से, z की पावर 8 यहाँ से 8 करेंगी, तो 1/4 फैक्टोरियल इट विल बी 1 by 24. सो दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर. ठीक है, इजी प्रॉब्लम है. और देखो ये प्रॉब्लम इन्होंने 2 मार्क्स में पूछा है, तो करेक्ट आंसर विल बी 1 by 24. उसको आप फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं ना, पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, डेसिमल में निकाल सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन हार्मोनिक कॉन्जुगेट. लेट u be a harmonic function and v be its harmonic conjugate. तो ये harmonic conjugate कब बनता है? When I define f of x plus iv as iy, uxy plus I times vxy, this becomes analytic. Then we say this v is a harmonic conjugate of u. Also this v should be harmonic itself, है ना? तो अगर ये फंक्शन एनालिटिक हो गया तो इट विल सेटिस्फाई कौन सी रीमान इक्वेशन? बाय CR इक्वेशंस. Or without using CR equations, first let me use one more idea. Since u is harmonic, so it must satisfy Laplacian. Uxx plus uyy must be 0. Let's find ux first. 3x square plus 2a xy plus kb y square. Let's find uy. It will be ax square two bxy plus 6y square. Let's find uxx. Uxx will be 6x plus 2ay. Uyy, it will be 2bx plus 12y. Now uxx plus uyy should be identically 0. So this is same as 6x plus 2ay plus 2bx plus 12y. Now this is a polynomial in 2 variable. A 2 variable polynomial is a 0 polynomial if and only if all the coefficients must be 0. तो यहाँ पे अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा, अगर आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे यहाँ से 6 मिलेगा, यहाँ से आपको 2b मिलेगा, तो 6 plus 2b that should be 0. Also अगर आप y का कंपोनेंट कंपेयर करेंगे कांस्टेंट, तो यहाँ से मिलेगा 2a, यहाँ से मिलेगा 12. So 2a plus 12 that should be 0. तो यहाँ से आपको मिलेगा b value is -3, you will get a value is -6. So a is -6, b is -3. We got the u function, but we need to find the v at point 1 1. तो यहाँ से मैं पहले u लिख लेता हूँ. u is equal to x cubed minus के 6 because a value is -6 x square y plus b value is -3 minus के 3x
y square plus 2y cubed. Now, by CR equations, because u plus iv is analytic, so by CR equations, I will write down ux बराबर vy. तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा? ux is 3x square minus k, 12x y minus k, 3y square. It will match with vy. अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेट करूं तो आई विल बी गेटिंग 3x square y minus k, 6x y square minus k y cube is equal to v plus some function of, इस फंक्शन को हम कहीं भी लगा सकते हैं ना, तो मैं यहाँ लगाता हूँ प्लस सम फंक्शन ऑफ x ओनली, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे सेम आंसर मिलना भी चाहिए, है ना? तो आई विल गेट दिस वन. नाउ ux बराबर vy एंड vx शुड मैच विथ माइनस के uy. अगर मैं vx करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 6xy माइनस के 6y स्क्वायर प्लस के g डैश, ओके vx करना है मुझे, या प्लस के g डैश ऑफ x, दिस इज माय vx. इट शुड मैच विथ माइनस के uy. तो माइनस के uy निकालूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ से 6y स्क्वायर ux बराबर vy, vx बराबर माइनस के x, vx करेंगे तो इधर, ठीक है, इधर y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो माइनस के 6x स्क्वायर, इधर y के रिस्पेक्ट में करना है. ये जीरो यहाँ से बचेगा, माइनस माइनस प्लस के 6x स्क्वायर, यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस के 6xy, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस के 6y स्क्वायर. तो 6xy से 6xy कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? 6y स्क्वायर माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो जो प्लस में आएंगे वो माइनस हो जाएंगे, तो इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव. तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास आएगा g डैश ऑफ x बराबर 6x स्क्वायर. तो यहाँ से आपका gx कितना आ जाएगा? 2x क्यूब प्लस सम कांस्टेंट k. नाउ व्हाट वी हैव गिवन, v at 0 0 is 1. So if you find v at 0 0 is 1, v 0 0 कब मिलेगा? जब यहाँ पे 0 0 पुट करोगे, ये 0 ये 0 ये 0, तो आपके पास आएगा g 0. सो जो g 0 is 1, दिस विल इम्प्लाई g 0 में 1 पुट करोगे तो 1 बराबर के k हो जाएगा. तो यहाँ से आपके पास gx कितना आ जाएगा? 2x क्यूब प्लस के 1. तो अपना फाइनल जो v आएगा ना, दैट vxy विल बी 3x स्क्वायर y माइनस के 6xy स्क्वायर माइनस के y क्यूब प्लस के 2x क्यूब प्लस के 1. तो दिस विल बी अवर v function. Now they are asking the value of a plus b plus v at 1 1. तो v at 1 1 निकाल लेते हैं, यहीं पर निकालता हूँ. v at 1 1, तो यहाँ से 3 माइनस 6 माइनस के 1 प्लस का 2 प्लस का 1, है ना? तो आप देखोगे इट विल बी -1. तो यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं. मॉड्यूलस ऑफ -6 -3 -1, इसका मॉड कितना हो जाएगा? 10. सो करेक्ट आंसर विल बी 10. आई होप यू गॉट द आइडिया. ठीक है, तो आई होप आपको सारे प्रॉब्लम समझ में आए. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हो. आई विल बी रिप्लाइंग देयर.
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय.